if you see this 2.15 is only this much. दिख रहा है आपको? Yes sir. This is only part of 2.15. ये नीचे का है जो है for the stoichiometry A plus give products find the orders with respect to A and B, वो नीचे क्वेश्चन के लिए है 2.16 के लिए. Okay. Yes sir. Okay, so this is only part of 2.15. इसलिए मैंने बोला ना कल दीक्षिता भी पूछा था कि B क्यों नहीं लिया हमने. दीक्षिता are you there? Yes, sir. Right. So, maybe it was confusing to you also because Yes, sir. I made the same mistake. Yeah. But if you see the notes में मैंने सिर्फ यही कॉपी किया 2.15 में सिर्फ ये 2 सेंटेंस ही है. ओके. ये जो है ये एक्चुअली इसके लिए है 2.16 के लिए 2.17 के लिए, ये 2 रिएक्शन के 2 प्रॉब्लम के लिए. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? इज इट ओके वैभव? Yes sir. एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है. देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस. लेट्स लुक एट सम अदर प्रॉब्लम्स. सिंपल प्रॉब्लम्स है, ये सब कर लिए हमने. डिफिकल्ट वाले जस्ट सिंपल आई थिंक स्किप डाउन. ये किया क्या हमने 2.1 2.2 वगैरह? दिख रहा है ये आपको 2.1 2.2? हाँ सर दिख रहा है. So Yes, 2.1 sir. 2.2 ये किया क्या हमने? आई डोंट थिंक सो. ठीक है. लेट्स लुक एट इट अगेन. क्या है तो रिएक्शन हैज अ स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन A plus B gives 2R. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? क्या होगा आंसर? ये सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, कंसेप्चुअल है, समझा कि नहीं आपको उससे पता चलेगा. व्हाट इज द आंसर? Who can tell what is the answer for this question? Stoichiometric equation दिया A plus B gives 2R. What is the order of reaction? 2. Okay. How many people agree with 2? Raise your hand. Okay. देवेंद्र है क्या? नहीं है. दीक्षिता? दीक्षिता नहीं है. Yes, sir. What do you think? Sir, 2. Why 2? Why should it be 2? The stoichiometric coefficients of A and B are 1. So Yeah. 1 plus 1 is 1. Not less. It's not given as elementary reaction. यहाँ स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन दिया है, राइट? कहीं कहीं नहीं बोला है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है. बोला है क्या क्वेश्चन में? Is it mentioned anywhere it is an elementary reaction? It could be non-elementary. फिर क्या होगा ऑर्डर? समझा क्या? What I'm सर trying to... स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन दिया है. हाँ, स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन बोला ना. स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन दिया, बट कहीं मेंशन नहीं किया कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है. बोला है क्या? नहीं बोला. Right. So can you tell order of reaction just looking at this reaction stoichiometric equation? नो, अगर नॉन एलिमेंट्री होगा तो नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा. Right. So you cannot tell the order of reaction just by looking at this stoichiometric equation because it is not mentioned whether it is elementary or non-elementary.
एलिमेंट्री रहा तो ही ऑर्डर 2 रहेगा, नॉन एलिमेंट्री रहा तो ऑर्डर 2 होगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. सो वी कैन नॉट टेल व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. दैट इज आंसर. समझा गया? Yes, sir. Okay, so let's look at 2.2. Given the reaction 2NO2 plus half O2 gives N2O5, what is the relation between the rates of formation and disappearance of the three reaction components? That means what is the relation between RNO2, RO2 and RN2O5? क्या होगा? सिंपल है, ये भी हमने किया है, जनरल इक्वेशन डिराइव किया. व्हाट इज इट? क्या होगा? अभिषेक कुंभाड़े. स्वराय. ओके. भूमिका. धैर्य पटेल. दिग्विजय सिंह चौहान. हाँ, what is the answer? दिग्विजय सिंह चौहान. ऋतुजा. मृदुला. No response means sleeping. हेलो सर. हाँ बोलो. माइनस 2 RNA2 इक्वल टू माइनस RO2 इक्वल टू RN2O5. करेक्ट है क्या? How many will agree with him? Raise your hand. और कोई एग्री नहीं करता है, क्यों? What is the answer then? Tell me. Anybody? Sir, minus Ra by 2 equals to 2 into minus RO2 equals to Rn2O5. Yes, it is actually R of that rate of reaction of that uh, reactant or product divided by stoichiometric coefficient. देखा था हमने, right? Minus RA upon A is equal to minus RB upon B is equal to RR upon R. Right? So we have to just divide by the stoichiometric coefficient. Simple है ये. Okay. Next 2.3. A reaction with stoichiometric equation half A plus B gives R plus half S has the following rate expression. Minus RA equal to 2 CA raised to power 0.5 in CB. What is the rate expression for this reaction? The stoichiometric equation is written as A plus 2B gives 2R plus S. समझ में आया? If you write the rate equation like this is the rate equation. If you write the rate equation like this, जो हम बहुत बार सोचते हैं कैसे, तो क्या होगा rate equation? You can tell. समझ में आया क्वेश्चन? देवेंद्र. Yes, sir. What is the answer? What is the answer? Sir, same ही होगा sir, Same ही होगा. It's not going to change. क्योंकि वो experimental होता है ना rate. Right. Rate equation is not going to change whether you write the rate stoichiometric equation like this or like this. The rate equation is going to remain the same. ये आपको अभी तक समझना चाहिए. राइट? किसी को डाउट है, क्वेश्चन है इसके ऊपर? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अच्छी बात है. लेट्स मूव ऑन. आई थिंक ये हमने फोर्थ किया था क्या? 2.4 for the enzyme substrate reaction. नहीं sir. Rate of disappearance of substrate is given by minus Ra equal to 1760 into concentration of A into concentration of E naught upon 6 plus Ca.
व्हाट आर यूनिट्स ऑफ द टू कांस्टेंट्स? कांस्टेंट्स क्या क्या है इसमें? व्हाट आर द कांस्टेंट्स इन दिस रेट इक्वेशन? 17606 1760 एंड 6, राइट? तो इन दोनों का कांस्टेंट्स का यूनिट्स क्या होगा? यू कैन टेल, इट्स वेरी सिंपल. सर 6 का तो सेम एज कंसंट्रेशन होगा. एग्जैक्टली करेक्ट. सो ये जो डिनोमिनेटर में है 6 प्लस सी है, तो कंसंट्रेशन का जो यूनिट रहेगा वही 6 का यूनिट होगा. अदरवाइज यू कैन नॉट ऐड दीज टू टर्म्स. Always remember that when you add two terms a plus b, you have to always have the same unit. So you cannot add 5 rupees plus 10 paisa. You have to convert 5 rupees and 10 paisa to 0.1 rupee and then add. Then it is 5.1 rupees. Similarly, this constant has to have the same units as CA. Good. What about 1760? सर 1/2. 1/2. Excellent. समझ में आया लोगों को? Why it is 1/2? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? Why should be 1/2? Okay. So who can explain why it is 1/2? Anybody? Siddhi, are you there? Yes, sir. Why should be 1/2? Sir, एक मिनट. ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है. एमसीक्यू हुआ तो ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चंस. Anybody else? सर डिनोमिनेटर में तो कंसंट्रेशन है, तो एक कंसंट्रेशन तो गायब हो जाएगा. तो Right. अनदर कंसंट्रेशन से आर का यूनिट मोल पर मीटर क्यूब है, तो वो भी कंसंट्रेशन गायब हो जाएगा, तो 1/2 आएगा. एक्सेलेंट. सो ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो बचा essentially it is a first order reaction. If you see that the first order reaction का rate constant is always 1/2. ये आपको बताया हुआ है, राइट? समझ में आया अभिषेक? Yes, sir. ओके. और किसी को डाउट है, क्वेश्चन है इसके ऊपर बिफोर यू प्रोसीड? बिकॉज दे आर वेरी सिंपल. दैट्स आई एम नॉट पुटिंग इट इन नोट्स ऑल्सो. अगर चाहिए तो मैं डाल दूंगा बाद में, बट इज अ वेरी सिंपल. 2.5. For the complex reaction stoichiometry, A plus B 3B gives 2R plus S, and with second order rate expression minus R equal to K1 A into B are the rate equations related as follows: RA equal to RB equal to RR. ऐसा है क्या? If the rates are not so related, then how are they related? Please account for signs plus or minus, जो हमने पहले देखा था, right? So what will be the rate equations? Correlation. श्लोक. कमलेश लाकड़े. नो रिप्लाई मीन्स हो रहा है. वृकोदर जादव. Yes, sir. आंसर बताने का, यस सर नो सर नहीं चाहिए, अटेंडेंस नहीं हो रहा है. टेल द आंसर. वृकोदर.
अश्विनी, गौरव पाटिल, खुशी ढोड़े, धनंजय कुमार, सब सो रहा है। नितिन दर्दुबे, साक्षी देशमाने, शिवानी, सर नहीं पता। नहीं पता रहे, ये तो बेसिक है, ये पहले फ्यू यूनिट्स में फ्यू लेक्चर्स में हो गया था। ये रिलेशन बिटवीन आर ए, आर बी, आर आर एंड आर एस, कैसे काम चलेगा? Who can tell? Nobody knows, is it? Sir, minus RA by 1 equals to minus RB by 3 equals to plus RR by 2 equals to plus RS. अभी तो किया हमने, when you did this upper one, कहाँ गया? कौन सा क्वेश्चन था वो? रिलेशन बिटवीन रेट्स ऑफ फॉर्मेशन डिसअपियरिंग, यहाँ तो किया था हमने 2.2 में। RNO2 by 2, R oxygen by minus RNO2 by 2 minus R oxygen by half is equal to RN2 by 5, 5 by 1। सेम ही तो है ये। minus RA by 1 is equal to minus RB upon 3 is equal to plus RR upon 2 is equal to RS upon 1. If you cannot do this now, then you are way behind. And you are not keeping up at all. ठीक है. A certain reaction is a rate given by minus RA equal to 0.005 Ca square, and the units are mole per centimeter cube per minute for RA. If the concentration is to be expressed in moles per liter and time in hours, what would be the value and units of rate constant? करो ये. Let's do this question. Let's see who can do it. इस PC का यूनिट 1 है, ये कन्वर्जन है और कुछ नहीं है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिनट में होना चाहिए. You finish it, raise your hand. Yes, Devendra, what is the answer? Hello. Yeah, Devendra, what is the answer? 3 into 10 raised to power minus 4 RA. और किसका आंसर हुआ? सर मेरा 3000 आ रहा है. जी कितना आया? क्या सर? 300. 300 is the correct answer. यस सर 300 आ रहा है. 300 is the correct answer. 300 और यूनिट्स क्या रहेगा? मोल पर लीटर आर. नहीं, कांस्टेंट का यूनिट्स. हाँ सर, एक मिनट.
300 का यूनिट्स क्या रहेगा? पर आवर हाँ, पर आवर पर आवर नहीं रहेगा, चेक करो फिर से। सर लीटर पर मोल पर आर। लीटर पर मोल पर हाँ आवर, सर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, रेट इक्वेशन है, तो लीटर पर मोल पर आवर रहेगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर है वहाँ पर, राइट? ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस प्रॉब्लम? सिंपल है, कन्वर्जन का है। ओके, ये हमने कर लिया 2.7 वगैरह। आई थिंक वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस नाउ, प्रॉब्लम्स। 2.9 2.10 भी हो गया, बाकी इतना नहीं। 2.55 15 भी हो गया, 2.18 हो गया। So you have done most of the questions, unsolved problems. Now let's move on to unit 2. Anybody has any questions on unit 1 before we start unit 2? अच्छा, यूनिट 1 का टेस्ट आपका कब, ट्यूसडे को रखने का है? When do you want unit 1 टेस्ट? कल देवेंद्र ने ट्यूसडे सजेस्ट किया था। सर या वो a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट वाला जो क्वेश्चन था वो इस यूनिट का नहीं है क्या? कौन हमने सा स्किप क्वेश्चन? किया, हमने स्किप किया वो। हाँ, एक मिनट। a प्लस बी किस पर है वो? क्या ये वाला क्या 2.16? हाँ सर। ये इसका ही है, लेकिन नॉट रियली इम्पोर्टेंट। दैट्स व्हाई मैट्रिक्स दिया है इसमें, दैट्स व्हाई आई डिडंट वांट टू कवर इट। थोड़ा सिलेबस में नहीं है, दैट्स व्हाई आई डिडंट कवर इट। ओके सर। मैट्रिक्स रीड करना पड़ेगा इसके लिए, टू सी व्हाट इज द रेट इक्वेशन और व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, समझे ना? तो दैट्स व्हाई आई स्किप्ड इट। सब हाँ प्रॉब्लम सर। नहीं सॉल्व किया, जो रेलिवेंट है वही सॉल्व किया मैंने। आई हैव नॉट सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। देयर आर मेनी अदर प्रॉब्लम्स, जैसे 2.12 बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इट इज़ नॉट रियली रेलिवेंट। 2.12 वाला जो है, ये वाला, यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट ऑफलाइन, और अगर डिफिकल्ट है तो पूछ सकते हैं मेरे को। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बट बहुत वर्डिंग बहुत बड़ा है, और बेसिकली यही है। आई थिंक इट इज़ ऑन RNS इक्वेशन, बट वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू यूनिट 2। एंड टेस्ट का क्या है शिवानी? व्हेन डू यू वांट टेस्ट यूनिट 1? देवेंद्र ने ट्यूसडे सजेस्ट किया था, राइट देवेंद्र? हाँ सर। शिवानी आर यू देयर? हाँ सर चलेगा ट्यूसडे को। Yeah, and we'll have the test not in the lecture. I don't want to use the lecture for test, क्योंकि लेक्चर पर कम पढ़ते हैं CRE में, जैसे CET के तरह। So we'll have it at 2 p.m. Is that okay? यस सर। Okay. So आपका ग्रुप पे डाल देना, अनऑफिशियल ग्रुप पे, Tuesday at 2 p.m. There will be 2 or 3 problems, numerical ही रहेगा सब. At least one will be on mechanism, I can tell you that. बाकी दो सिंपल हो सकते हैं. And you have to solve it and scan it, PDF सबमिट करना पड़ेगा गूगल क्लासरूम में. ठीक है, so let's move on to unit 2 now. Okay, let's see, let me start this.
Okay, so unit 2 is about analysis and interpretation of batch reactor data. Can you see this? So what is the batch reactor? Anybody has any idea? बैच रिएक्टर का मतलब क्या होता है? ये पता आपको? किसी को नहीं पता? स्टेडी स्टेट रहता है बैच रिएक्टर, कंपोजिशन चेंज नहीं होता टाइम के, क्या नहीं आता? कंपोजिशन चेंज नहीं होता है टाइम के साथ बैच रिएक्टर। नहीं, that is not right. Anybody else? सर उसमें थोड़ा थोड़ा रिएक्टेंट डाला जाता है। No, that's also not right. और जो फीड है वो एक ही बार दी जाती है ना, फिर हाँ? डायरेक्टली फीड एक ही बार दी जाती है, फिर डायरेक्टली प्रोडक्ट्स निकाल। Yeah, correct. So essentially what you do is you dump the reactants, close the vessel and do the reaction without taking out anything. So input भी नहीं है, output नहीं है, जितना भी है वो रिएक्टर में हमने ऐड कर दिया। फीड जो रहेगा जितना भी ऐड करना ऐड कर दिया, उसके बाद बंद करके उसको रिएक्ट करने के लिए टेम्परेचर जो भी रहा मेंटेन किया। दैट इज अ बैच रिएक्टर। नो इनपुट नो आउटपुट। घर में कहीं देखा है बैच रिएक्टर? किचन में? प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में आउटपुट नहीं रहता क्या? मिक्सर मिक्सर। मिक्सर या यू कैन से मिक्सर, उसमें कुछ आउटपुट नहीं रहता है, सब डाल के डंप करके हमने मिक्स कर दिया। रिएक्शन नहीं होता है, बट इट्स लाइक अ बैच रिएक्टर। अगर रिएक्शन होता है तो ऐसे होता है, करेक्ट। और प्रेशर कुकर क्या रहेगा? उसमें आउटपुट होता है कुछ नहीं? क्या प्रेशर कुकर में हम सब डंप कर देते, उसके बाद क्या होता है? सर वो स्टीम निकलती है ना ऊपर स्टीम से। निकलता है तो आउटपुट आता है थोड़ा, राइट? इट्स नॉट रिएक्ट, मे बी वाटर आल्सो हेल्प्स इन कुकिंग, उसके प्रेशर से ही कुकिंग होता है। सो इट इज कॉल्ड सेमी बैच रिएक्टर। इनपुट नहीं है लेकिन आउटपुट है, सो दैट इज सेमी बैच। बैच इज नो इनपुट नो आउटपुट, सेमी बैच इज इधर इनपुट और आउटपुट, ओनली वन ऑफ देम, दोनों नहीं रहेगा। और दोनों रहा तो क्या होगा? इनपुट भी रहा और आउटपुट भी रहा तो कंटिन्यूअस। continuous reactor, right? So understand difference. Batch reactor is no input no output, same batch is either input or output, दोनों नहीं रहेगा। और सर दोनों तो बैच को हम डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं? डिसकंटिन्यूस नहीं बोलते, उसको बैच ही बोलते हैं। टर्म यूज इज बैच ओनली। इट इज डिसकंटिन्यूअस, देयर इज नो कंटिन्यूटी, बट इज कॉल्ड बैच रिएक्टर। टर्मिनोलॉजी बैच ही होता है। Semi batch is either input or output, not both, and continuous is both input and output. Okay, so if you see this is a diagram of a batch reactor. यहाँ पर जितना भी है रिएक्टेंट्स डंप कर दिया इसमें और उसको क्लोज कर दिया हमने। देयर इज नो आउटपुट, देयर इज नो इनपुट। ये सब इसका डिटेल दिया है कि बैफल है, शाफ्ट है, जैकेट है हीटिंग के लिए या कूलिंग के लिए, कनेक्शन फॉर हीटिंग और कूलिंग जैकेट यहाँ से जो रहता है, इनपुट आता है, स्टीम आएगा या कूलिंग वाटर आएगा, इम्पेलर है मिक्सिंग के लिए, ड्रेन वॉल्व है जब जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा तो खाली करने के लिए, ड्रेन करने के लिए, और फीड करने के लिए ऊपर से रहता है, और ऊपर मोटर है ये मिक्स करने के लिए। सो दिस इज एसेंशियली अ बैच रिएक्टर। Okay, so batch reactors are used for most of the reactions carried out in laboratory. अब जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, केमिस्ट्री में किया है ना कुछ रिएक्शन?
केमिस्ट्री में करते हो ना रिएक्शन, नहीं किया कभी? यस, नो, डोंट नो, डोंट रिमेम्बर? केमिस्ट्री लैब किया कि नहीं किया आप लोगों ने? क्या है सर? उसमें रिएक्शन कभी किया कि नहीं किया? हाँ सर। राइट, सो व्हेन यू ऐड ऑल दिस थिंग्स, डंप इट, मोस्टली रहता ही वही है, बैच ही रहता है लैब में. Right? Reactants are placed in test tube, flask or beaker, which can serve as a batch reactor. They are mixed together, often heated for the reaction to take place, and then cooled. Products are poured out and, if necessary, purified. So essentially, that's the definition of batch reactor. सेम बैच में यहाँ पर दिखाया कि कंपोनेंट ए आ रहा है, दैट मीन्स रिएक्टेंट आ रहा है, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है. बाकी सब ऑलमोस्ट सिमिलर है बैच रिएक्टर के. कूलेंट है या हीटिंग मीडियम हो सकता है, स्टरर है, बैफल है, वो सब रहेगा. बट ओनली इन दिस केस इनपुट बता रहा है, बट कभी कभी ऐसा सकता है कि इनपुट नहीं आउटपुट रहेगा. So it depends on the reaction. Okay, and then continuous reaction में it's called CSTR. CSTR का full form क्या है, पता है किसी को? It is continuous stirred tank reactor. Continuous stirred tank reactor. इसमें क्या है, ये जो रिएक्टर है, it looks like a batch reactor only. सब सिमिलर है. ओनली थिंग इज यहाँ पर इनपुट भी है और आउटपुट भी है. सो कंटिन्यूसली रिएक्टेंट आ रहा है और कंटिन्यूसली प्रोडक्ट विड्रॉ कर रहे हैं. सो इट इज कॉल्ड CSTR or continuous stirred tank reactor. It is also called VAT or back mix reactor, mixed flow reactor, or continuous flow stirred tank reactor. Different terminology, but mostly we use CSTR or MFR. So it is continuous stirred tank reactor or mixed flow reactor. ठीक है, समझ में आया डिफरेंस बिटवीन बैच, सेमी बैच एंड कंटिन्यूस stirred tank reactor? Anybody has any questions? So this is going to be your basic for all our study in the CRE1. ठीक है, there are no questions. Let's proceed. सर MFR क्या होता है सर? हाँ, MFR में क्या होता है? सेम ही है, इट्स द सेम थिंग, डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम थिंग. CSTR का नेम मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर भी है, कंटिन्यूस फ्लो स्टर्ड टैंक रिएक्टर भी है, सेम है, ओनली डिफरेंट नेम्स. डिफरेंस कुछ नहीं है, वही है. ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल अभी आपको समझेगा नहीं, बाद में देखेंगे. एंड देयर इज अनदर continuous reactor, it's called plug flow reactor, PFR or plug flow reactor. इसमें एक ट्यूब रहता है, it can be small tube, it can be big tube, depending on how much reaction you want, how much is the reactant product flow rate. तो कंटिन्यूसली यहाँ से फ्लो रिएक्टेंट आता है और यहाँ से कंटिन्यूसली प्रोडक्ट विड्रॉ करते हैं. तो इट्स लाइक अ ट्यूब, जैसे हमें पाइप रहता है ना वाटर फ्लो के लिए, उसमें अगर रिएक्टेंट डाल दिया, जो रिएक्ट होता है तो रिएक्ट होगा यहाँ पर और बाद में यहाँ से प्रोडक्ट निकलेगा. तो इट्स कॉल्ड प्लग फ्लो रिएक्टर और कंटिन्यूस ट्यूबुलर रिएक्टर और पिस्टन फ्लो रिएक्टर. We'll study all these systems. First, understand how it looks, how is the flow pattern, कैसे होता है. यहाँ से अंदर आता है, यहाँ से जाता है, जैसे कंटिन्यूस रिएक्टर यहाँ से अंदर आता है, यहाँ पे मिक्स होता है और यहाँ से होता है. यहाँ पर देयर इज नो मिक्सर बिकॉज इट्स अ ट्यूब, देयर इज नो मिक्सर हियर. वो ऑटोमेटिकली मिक्स्ड फ्लो आता, जो रिएक्टेंट्स आता है मिक्सड आता है, रिएक्ट होता है और यहाँ से बाहर जाता है. सो देयर इज नो मिक्सिंग इन दिस. Here it is continuous mixing. There is a difference between CSTR and plug flow reactor. Any questions on various types of reactors? सर PFR में मिक्सिंग कहाँ की जाती है? There is no mixing. We'll see. There is no mixing. That is why it is called plug flow reactor.
प्लग फ्लो आपने पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स में कहीं? एफएम में पढ़ा होगा ना प्लग फ्लो? नो सर। क्या होता है प्लग फ्लो में? तो रेडियल डायरेक्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा ना? इसेंशियली यहाँ जो रहता है, ये जो अगर ये लिया हमने डिफरेंट लेयर्स लिया, आपको सपोज आई टेक डिफरेंट लेयर्स ऑफ let me show it here. Okay. So if you look at this one, this is a batch reactor. Batch reactor में mixing रहता है, right? So there's a mixer here. और यहाँ से जो आया ऐड किया हमने, बाद में इसको बंद कर देते हैं, एंड देन यू हैव खत्म होने के बाद यहाँ से आउटपुट आता है, राइट? सेम बैच में यहाँ से आ रहा है लेकिन बाहर नहीं जा रहा है कहीं पर, बराबर? सो देयर इज अ दैट्स व्हाई इट इज सेम बैच. देन CSTR में कंटिन्यूसली इट कम्स फ्रॉम हियर. And continuously it is going out, and there is continuous mixing here. Okay, so this concentration in the tank and concentration outside leaving it is same. यहाँ पर ये डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर जो टैंक concentration है वही concentration यहाँ रहेगा. That is a CSTR. When you look at PFR में if I take two sections, right? ये लिया मैंने और ये लिया, तो there is no mixing between this and this. और adjacent layers, even adjacent भी लिया मैंने, so there is no mixing between them. So I take a layer like this. ये लेयर रहेगा और ये लेयर रहेगा, there is no mixing between these two, and that is the definition of plug flow. It flows like a plug, right? Plug रहेगा ना, तो plug रहता है ऐसा रहा, right? It's like a plug like this. It flows like this. There's no mixing between these two, and that is why, and that's a property which is used in plug flow reactor, which gives higher conversion than mixed flow reactor. We'll see that later, but just understand कि जो मिक्स फ्लो रिएक्टर रहता है उसमें कंटिन्यूस मिक्सिंग रहता है, राइट? और इसमें अभी आपने जो देखा, इनलेट कॉन्सेंट्रेशन इज वट एवर इट इज कॉन्सेंट्रेशन, जैसे ऐड किया इमीडिएटली इट बिकम्स टैंक कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज ये फ्लो रेट कम रहता है, ये वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, राइट? सपोज दिस इज, सपोज ऐसे, suppose this is 10 moles per liter. I suppose this is 5 moles per liter. तो जो ऐड करते हैं immediately it becomes 5 moles per liter concentration. And reaction यहाँ पर होता है, right? So the reaction is happening here, minus RA equal to, suppose it is KCA. ठीक है? That means ये जो CA है, CA is this.
right? So this reaction rate is going to be low because concentration 10 से immediately 5 होगा यहाँ पर. अगर 10 रहता तो ज़्यादा आता था रेट, बराबर. You understand what is happening in mixed flow reactor or CSTR? यस सर. इसको नहीं समझाइए बिकॉज यहाँ पर जो रहता है ना कि यहाँ पर मिक्सिंग होता है तो ये जो फ्लो रेट रहता है लो रहता है, फ्लो रेट ज़्यादा नहीं रहता है बट ये वॉल्यूम ज़्यादा रहता है. वॉल्यूम इज क्वाइट लार्ज whereas flow rate is less. तो ये जितना भी आएगा इमीडिएटली इट विल बिकम लाइक जितना भी रहेगा. सपोज यहाँ पर लिया एग्जांपल 10, इट कुड बी एनीथिंग. So it will become immediately 5 moles per liter concentration because this flow rate is so small compared to the volume of the tank. So the reaction is taking place at lower concentration. It is not taking place at feed concentration in the mixed flow reactor. That is why compared to plug flow reactor, this rate is low. Plug flow reactor में क्या होता है? The plug flow reactor ये जो रहेगा यहाँ पर suppose it is CA 10 moles per liter लिया हमने. तो यहाँ जो रिएक्शन होगा that will happen at feed में इनलेट पे, it will happen at 10 moles per liter. फिर बाद में जो रिएक्शन यहाँ पर होगा it may happen at 9.5. Here it may happen at 9. Here it may happen at 8.5. जैसे जैसे concentration रिड्यूस होता जा रहा है, right? 8 till it goes out. Suppose this is again 5, right? तो रिएक्शन यहाँ पर हायर रहेगा कंपेयर टू मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर. यहाँ पर हायर रहेगा, यहाँ पर हायर रहेगा, यहाँ पर हायर रहेगा. So throughout it is higher than the exit concentration. So conversion it is higher in CSTR than mixed flow reactor. समझ में आई बातें? Difference between mixed flow reactor and plug flow reactor. किसी को डाउट है, क्वेश्चन है? बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी आवर बेसिस फॉर एवरीथिंग सीआरई में. डिफरेंस समझ में नहीं आया तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. हम क्यों क्या कर रहे हैं करके. सर एक बार फिर से बताओ ना. Okay. So if I look at mixed flow reactor, right? Mixed flow reactor में this flow rate is normally very small compared to the volume of the tank. Volume में all the tank ज़्यादा रहता है, flow rate कम रहता है. So this अगर feed concentration 10 moles per liter है और हमारा conversion 50% है suppose, right? तो ये हो जाएगा 5 moles per liter concentration. We'll see all those things. तो हमारा एग्जिट कॉन्सेंट्रेशन जो है वही टैंक कॉन्सेंट्रेशन है. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर. सी टैंक इज इक्वल टू सी आउट. तो जैसे ही मैंने ऐड किया यहाँ पर फीड 10 मोल्स पर लीटर का, इट बिकम्स इमीडिएटली 5 मोल्स पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज दिस वॉल्यूम इज मच मोर देन द फ्लो रेट. तो रिएक्शन जो होता है, इफ आई टेक फर्स्ट ऑर्डर, आई एम टेकिंग सिंपल रिएक्शन नॉट टू कंफ्यूज यू. तो माइनस आर इक्वल टू के सी ए लिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो कॉन्सेंट्रेशन इज जो रिएक्शन हो रहा है 5 मोल्स पर लीटर. कॉन्सेंट्रेशन टैंक इज 5 मोल्स पर लीटर, राइट? तो यहाँ पर जो रेट रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा, वो दैट विल बी एट के वट एवर द रेट कांस्टेंट इनटू 5, राइट? तो इसीलिए ये कम रहता है कंपेयर टू प्लग फ्लो रिएक्टर. क्योंकि प्लग फ्लो रिएक्टर में क्या होता है, reaction takes place without mixing. There is no mixing. Whereas mixed flow reactor में mixing रहता है. That's why it's called mixed flow reactor. तो इसमें क्या होता है, जैसे entrance रहेगा of the plug flow reactor, concentration is 10 moles per liter. तो reaction जो रहेगा 10 moles per liter पे होगा. So this concentration is different at different points in the plug flow reactor. धीरे धीरे कम होते जा रहा है, राइट? यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन अगर
10 है तो हायर रहेगा, राइट रेट। यहाँ पर सपोज 9.5 है तो फिर भी वो 5 मिक्स फ्लो रिएक्टर से ज़्यादा है रेट। यहाँ पर 9 है तो मिक्स फ्लो रिएक्टर से ज़्यादा है, सो इट इज़ कंटिन्यूसली reacting, but it is reacting at a higher concentration, so the reaction rate of reaction is higher than mixed flow reactor. अगर if you keep the exit concentration same as mixed flow reactor 5, तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो रेट रहेगा इट्स कंपेयर टू सेम एज मिक्स फ्लो रिएक्टर, बाकी सब जगह उसका रेट ज़्यादा है, and you get higher conversion or more reaction in mixed plug flow reactor. समझा क्या? यस और किसी को डाउट है पूछो। सर आउटपुट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा फिर दोनों में? I just kept same just for comparison. A mixed flow reactor outlet, suppose I keep 5 and plug flow का भी I keep same 5, then higher conversion is obtained in plug flow reactor. That's what I was trying to explain to you. कम होगा ज़्यादा होगा, that is depending on actual conditions. Just for comparison, I didn't want to confuse you, so I kept same. Right? तो वहाँ पर भी हमारे को 5 मोल्स पर लीटर मिल रहा है concentration exit में, right? जो मैंने बताया यहाँ पर। तो जस्ट टू कंपेयर सेम कि अगर सेम आउटपुट लेने का हमारे को, राइट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिएक्शन ज़्यादा होगा, रेट ज़्यादा रहेगा, रेट ज़्यादा रहेगा, तो ये रिएक्टर वॉल्यूम कम हो जाएगा। You'll see all those things. It will come much later, but understand difference between mixed flow reactor and plug flow reactor. That is what I was trying to explain. Any questions? ठीक है, सो ये कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल जो बताया मैंने वही बताया मैंने। ये जो इफ यू सी दिस प्लॉट CA वर्सेस टाइम CSTR में, तो इनिशियली जो रहेगा, जो फीड का रहेगा ये रहेगा, यहाँ पर धीरे धीरे बताया, बट आई जस्ट टोल्ड यू कि इमीडिएटली हो जाएगा, बट धीरे धीरे इट विल बिकम लाइक एग्जिट कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा, राइट। सो ये जो फीड कॉन्सेंट्रेशन है ग्रेजुअली यहाँ पर बताया टाइम के साथ 2 मिनट में, बिकॉज थोड़ा मिक्सिंग के टाइम लगेगा, बट आई सेड कि इमीडिएटली हो जाता है। आई शोड यू लाइक दिस, राइट, कि इमीडिएटली कम हो जाता है, सॉरी ऐसा नहीं। राइट, यहाँ पर थोड़ा चैन रहेगा, बट इट एसेंशियली इट मीन सेम थिंग कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्शन जो होगा, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट लो कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अगर यहाँ पर 20 मिनट के लिए रिएक्शन हो रहा है तो बराबर। whereas if I look at plug flow reactor में धीरे धीरे ये लेंथ है, वॉल्यूम बोलो या लेंथ बोलो, लेंथ ऑफ रिएक्टर, तो धीरे धीरे कम हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन। तो रिएक्शन जो रहेगा यहाँ पर जो रहेगा ये एट ये कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, राइट, यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन पर होगा। सो धीरे धीरे हो रहा है, सो इट इज हैपनिंग एट हायर कॉन्सेंट्रेशन हियर। तो क्या हो जाता है, अगर ये एग्जिट कॉन्सेंट्रेशन इज सेम एज मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर कॉन्सेंट्रेशन, तो रेट ज़्यादा रहता है सब जगह, तो यू गेट हायर कन्वर्शन फॉर द सेम लेंथ और वॉल्यूम, और वॉल्यूम कम हो जाता है। तो विल सी ऑल दोस थिंग, बट अंडरस्टैंड कि कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ग्रेजुअली चेंज होता है प्लग फ्लो रिएक्टर में, वैसे मिक्स फ्लो रिएक्टर में ऑलमोस्ट इमीडिएटली हो जाता है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ओके, okay, we don't have much time, ठीक है। So just understand the difference between mixed flow reactor and plug flow reactor. Tomorrow we'll continue from here. कुछ वीडियोस है मेरे पास मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर, बैच रिएक्टर के, आई शो यू टुमारो। आज टाइम नहीं होगा, 2 मिनट ही बाकी है, 3 मिनट। किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछो अभी भी, सर या जो MFR वो कंटिन्यूस में आएगा या बैच में?
कंटिन्यूस है वो, इट्स कंटिन्यूस। यहाँ कंटिन्यूस इनपुट है, यहाँ से इनपुट आ रहा है, इसी कंटिन्यूसली इनपुट आ रहा है, कंटिन्यूसली आउटपुट जा रहा है। इट्स अ कंटिन्यूस रिएक्टर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड CSTR आल्सो, कंटिन्यूस स्टर्ड टैंक रिएक्टर। यस सर। और यहाँ पर फ्लो आ रहा है, फ्लो मीन्स कंटिन्यूस ही होता है, मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर। फ्लो रिएक्टर मीन्स कंटिन्यूस होता है। जैसे ये नीचे देखेंगे आप, ये जो है ये प्लग फ्लो रिएक्टर, राइट, फ्लो आया यानी कंटिन्यूस ही है। ठीक है, यस सर। right? So there is no mixing between adjacent layers in the pipe in a plug flow reactor, whereas mixed flow reactor में continuous mixing होता है। ये difference याद रखिएगा, no mixing in plug flow and complete mixing in mixed flow. हेलो सर, Yeah. फार्मा कंपनी में बैच रिएक्टर ज्यादा क्यों यूज करते हैं? फार्मा कंपनी बैच रिएक्टर ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक तो क्वांटिटीज़ कम रहता है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग, इफ यू गो टू पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ह्यूज क्वांटिटीज रहता है, मिलियंस ऑफ टन्स रहता है पर ईयर। वेरएज़ फार्मा का जो आउटपुट रहता है वो लिमिटेड रहता है, इतना जितना ज़्यादा नहीं रहता है, इट्स वेरी रिलेटिवली मे बी इन थाउजेंड्स ऑफ टन्स। एक ये रहता है एंड इट्स ईजी टू हैंडल। दूसरा क्या रहता है, बैच रिएक्टर में यू कैन कंडक्ट मैनी रिएक्शंस। सपोज मेरे को आज एक रिएक्शन करना है तो बैच रिएक्टर यूज़ कर लिया मैंने, रिएक्टर हो। सपोज टुमारो आई वांट टू मेक अनदर प्रोडक्ट, तो उसको क्लीन करके उसमें सेम इसमें दूसरा बना दिया। वेरएज़ कंटिन्यूस में जनरली इट इज़ फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट because it's designed for one particular product. It's very difficult to change the raw material product in a continuous plant. Batch reactor में you can always change, जितने types of reaction करना है कर सकते हो, and that is why pharma में they use batch because you can have multiple products in the same reactor. एक reaction suppose एक दिन चला, 2 दिन चला, it doesn't matter, few hours चला, तो आज खत्म हो गया reaction, कल उसको साफ करके दूसरा reaction ले सकते हैं। There is continuous reaction में you have one product in the entire plant. That's why you'll see यूरिया प्लांट में यूरिया ही बनेगा, अमोनिया प्लांट में अमोनिया ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, राइट? समझ में आया? हाँ सर। ओके, ठीक है, we'll stop here and continue tomorrow.